Okay, so wonderful. A very welcome to all of you in today's session. Today is the first session of Inner Circle session. Now, Inner Circle means the students of Edge IAS. Now, we'll have these sessions regularly and continuously once a week, and we'll connect one to one. And the idea is to make sure that the people who are facing problems in preparation, we are going to connect on that. Now, today's every session will have a theme, and today's session is that we'll understand the dynamics of how to score better. And you can put your chat also, and I want everybody to participate and just everybody just message it. Okay, got it, everybody. I want everybody to participate in the process. Okay, let's try to make sure that engagement is very effective in the class. That is the key part. Now, how many of you are targeting prelims next year? I want to know that. Just raise your hand. How many of you are targeting, or just say yes, me. Just write me in the chat box. How many of you are targeting prelims next year? Just message all of you, everyone. Just message me. Okay, fair enough. Okay, good, good. So if you're targeting prelims, now let's understand the dynamics of that. Because if you're giving test, you will come across these problem. If you are not, if you have given the test, अगर आपने test दिया है तो ये problem face करेंगे, कर रहे होंगे, and if you have not given the test, you will face these problems. So today we'll discuss the agenda of the day, some talking point, and आखिरी का जो 45 minute का जो time होगा, I'll wrap up everything in 45 minutes and let's discuss the journey. हम लोग बात करेंगे आपस में, and you will say something, I will listen, and let's make a strong peer group. एक चीज और मैंने देखी है that student when they interact with each other and if the student have the similar goal, the learning becomes more effective. So that is the objective we have. Okay, so all of you, first of all, very welcome to today's session, and the objective of today's session is to be able to make to the prelims examination do better. Now, so in today's agenda हम लोग क्या करेंगे? We are going to discuss few things. The first is the self reflection, which means you need to ask yourself that where you stand. Now remember, ये competition है, and a competition you have to be mentally ready. ये game सारा mental है. A lot of you might feel that it is hard work, academic. Yes, all that is there, but eventually आप burn out हो जा रहे होगे. Now how many of you feel burnout, demotivate? कितने लोग हैं? How many of you feel that? अकेले पढ़ रहे हैं, suddenly you feel that journey is very alone. How many of you feel that? कितने लोग ऐसा feel करते हैं? There is pressure on them, they are feeling burnout, you have nobody to talk to. कितने लोग ऐसा लगता है? Everybody, almost everybody, right? Almost everybody. Okay, you can put in the everyone में डालिए. I can see who are messaging. Everyone, right? तो preparation में the concept of burnout will very naturally will come regularly, and that is where you need to interact, share your concerns, and when you share these things, it will happen. So where you stand right now? You're targeting 2026. तो अभी कहाँ stand करते हैं? Can I crack prelims? The question is, now let me share you one data. If you go by my logic and my belief system, आप इतने time में, now we have how much? We are in November till May. You can prepare twice. आप 2 बार तैयारी कर सकते हो prelims को निकालने के लिए. I'm just talking prelims. The question is, sir, is it possible? Answer is yes, it is possible. You just have to have a right strategy. आप 2 बार, मतलब इतने ही फेज में 2 बार तैयारी करके आप prelims निकाल सकते हो. The point here is that we are not putting real effort and we are not focusing on the process. Okay, so reflection is very important. The second is psychology of scoring high. Now people who have given prelims या जो लोग दे चुके हैं will understand कि average aspirant or people who crack prelims, or for that matter the people who are और ये मैंने भी face किया है. So don't just think that because I have given 3 prelims and 3 mains, nothing unique about it. ऐसा कोई इसमें ढोल पीटने वाली बात नहीं है, but yes, you can do that. Now how toppers think during test, उनका जो psychology होता है, psyche होता है, वो अलग हो जाता है, and that you can also reach there by training and practice. ये ऐसा नहीं कि आप बचपन से आपकी psychology strong है तो आप strong रहोगे. You can develop it with certain hacks and putting effort. Okay, the third is 5 pillars of high mock test performance है, इसके बारे में बात करेंगे. Strategy, revision, accuracy, risk and analytics. Now these are 5 hacks. The common mistake जो आपके score को kill करता है, you have to avoid. आपके avoidable errors कौन से हैं, behavioral traps क्या होते हैं. Then you have a 90 days, rather we have 6 months. ये मैंने अलग से plan बनाया. You have practical roadmap how you can score 20 plus 30 plus marks. And in the last 30-35 minutes, 40 minutes, हम लोग क्या करेंगे, एक Q&A करेंगे, आपस में बात करेंगे. Okay, so this is the agenda for today.
एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू अगले आधे घंटे मेरी बात सुनिएगा, बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस टू यू एंड इट विल आपकी प्रिपरेशन को इसमें एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। एक आप तैयारी अकेले कर रहे हो, मेनी ऑफ यू आर सिटिंग एट होम प्रिपेयरिंग, लेट्स कनेक्ट वंस, यू नो, और अगर लगेगा ये इफेक्टिव है इसको हम ट्वाइस कर देंगे, यू नो, आइसोलेशन से बाहर निकलते हैं। ये प्रिपरेशन अकेले नहीं हो सकती है। एक लेवल के बाद यू नीड अ कंपेनियनशिप आल्सो, अ फ्रेंड आल्सो हु इज एट सिमिलर जर्नी, हु इज फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम्स एंड यू कैन कॉम्पीट अमंग योरसेल्फ आल्सो, बिकॉज वहां पर वी हैव पीपल, वी हैव 15,000 पीपल हु आर राइटिंग द जो प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, तो आई कैन बी अमंग वन ऑफ दोज पीपल। अगर 100 बच्चे यहां से हैं तो ऑल 100 कैन क्लियर द प्रीलिम्स, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। ओके, तो पहला है, पहली बात तो अपने आप से पूछिए वेयर यू स्टैंड, व्हाट सब्जेक्ट्स यू प्रिपेयर्ड, are you mentally strong, do you feel that things are not happening? So this is the first question। and एक और बात है कि आपने कितने टेस्ट लगाए हैं आपने। now right now people who are targeting, now there are people who are have given prelims, तो अगर आप पहले फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका तो नेचुरली आप तो अभी बहुत होगा तो क्लास टेस्ट लगाते होगे, okay, not beyond, but people who have given the attempt they have given mocks multiple time। then आपने कभी, have you tried to look at what is the average score of GS plus CSAT, and you should know that answer। What is stopping you from crossing 100 plus in GS? आपको 100 plus target करना है। On a worst day also, मैं 20% above cut off, so we have to target 20 to 30% above cut off, और इसको हमें टारगेट करना है। अब ये कैसे पहुंचना है? Now, lot of you feel that prelims is a game of knowledge, yes, but prelims में स्कोर तीन चीजों पर डिपेंड करता है as per my understanding। First is your knowledge, you are acquiring it on daily basis, आप रोज पढ़ रहे हो, acquiring knowledge, but in prelims it's about application। Okay, the first is about knowledge, second is about application, and third is a decision making that you do during the mocks। आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके दिमाग में चीजें क्या चल रही हैं, फियर है, ज्यादा अटेम्प्ट होगा तो यू नो इनकरेक्ट हो जाएंगे, कम होगा तो प्रीलिम्स निकलेगा। there are some people who attempt 100, they feel so overconfident, and you know I said that how many attempted, he said sir 100। I mean, are you serious? इसमें तो you know you should not attempt more than 85 or maybe 88 and you attempted 100, because 15-20 क्वेश्चन तो हमें भी नहीं आते थे, मतलब for me also it was a googly। so I'm just trying to say that, so आपका decision making on the final examination on the you know examination day will be is very crucial, but उसकी तैयारी हम अभी से करेंगे। so always prelims is not about knowledge and application, it is also about decision making, that आप decision making जो अपनी prelims की तैयारी में हर दिन करते हो और आप mocks के टाइम जो करते हो, that is a very important crucial part। now now psychology of scoring high, मान लीजिए you consider yourself an average aspirant और आप एवरेज से आप टॉपर बनना चाहते हो। now let me explain it। now when I people who are clearing prelims, उनका confidence level थोड़ा ऊपर रहता है। now normally जो people who have not given mocks या practice नहीं किया है, remember you can reach from an average aspirant to a topper by just practice and plan। तो प्लान होना जरूरी है, that means strategy, system, and then a repeated practice। and practice का मतलब ये नहीं सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, practice is about analyzing, strategizing, re-strategizing and making sure कि स्कोर बढ़ रहा है, identifying the weak areas। for example आप 60 स्कोर कर रहे हो तो 60 से 80 जाने में टाइम लगेगा, 80 to 90 जाने में मे बी 2 महीने लग जाएगा, 90 to 100 जाने में मे बी अनदर 2 मंथ्स लगेगा। ओके, सो ये जो प्रिपरेशन का जर्नी है ना, लोग यही फंबल कर जाते हैं, दे गिव अप बिकॉज दे फील दैट नहीं हो रहा है, they are not able to put things properly and you are putting a lot of efforts। तो पहला तो यह है, एक एवरेज स्टूडेंट जो है, जो तैयारी उसकी कम है या इवन हार्ड वर्किंग है, वो ओवर थिंक करता है, क्वेश्चन करे ना करे, नो ये नहीं करते हैं। टॉपर ऑन द कॉन्ट्री इज वेरी एनालिटिकल, इसको गेम की तरह ट्रीट करो। अच्छा ठीक है, तैयारी अच्छी है, आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन डू इट। अगर आपकी तैयारी अच्छी है एंड इफ यू फील फ्रॉम इनसाइड, नथिंग कैन स्टॉप यू। नाउ दिस इज अ गेम ऑफ माइंडसेट, रिमेंबर, ये हार्डवर्क का गेम नहीं है, इट इज गेम ऑफ माइंडसेट एंड स्ट्रेटजी। The second is you feel demotivated, you know, आपका स्कोर कम आया, आपका माइंडसेट टॉपर वाला है, आपका एरर यू विल सी एज अ फीडबैक, अच्छा आई मिस दैट पार्ट, ये वाला टॉपिक पे मेरा एक्यूरेसी कमजोर है, मे बी इन इकोनॉमिक्स कैपिटल मार्केट वीक है, इन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे काम नहीं किया है, सीएजी नहीं देखा है, यूपीएससी नहीं देखा है, यू नो मे बी आर्टिकल 324 नहीं देखा है, इलेक्शन कमीशन नहीं देखा है, एंड सडनली या अच्छे से नहीं देखा है, क्वेश्चन ऑन पार्लियामेंट्री कमेटी केम और वो तैयार नहीं है, यू हैव नॉट रेड इट प्रॉपर्ली, तैयार इसलिए नहीं बिकॉज रिविजन नहीं हुआ है। सो दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। देन fear of negatives, fear of negative is very important। now before going ahead,
आई वांट, मैं थोड़ा माइक को ऑन करता हूं बिकॉज आई वांट टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव एंड लेट मी सी इफ माय स्पीकर वर्क्स. ओके, सो पहली बात तो let me unmute. Okay, so anybody, I want somebody to speak. Anybody, I just want someone to speak, but एक आदमी बोलना. Suhail, you try to speak बेटा. आवाज जब बोल रहे हो. Okay, okay, मेरा mic, okay, there's some problem in the, okay, fair enough, fair enough. Okay, 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 just hold on, hold on. It is one way है. Okay. Okay. Suhail, एक बार फिर बोलना बेटा. Just speak again. Okay, just hold on. There's some problem in the मैंने एक्चुअली सिस्टम मैंने टेस्ट नहीं किया था, दैट इज व्हाई आई वाज फेसिंग प्रॉब्लम. 3-4 महीने पहले मैंने यहाँ से ऑनलाइन क्लास ली थी. सो ओके, आई विल ट्राई टू डू दैट. तो मे बी व्हाट वी कैन डू इज दैट हम लोग एक काम करेंगे, मैं लैपटॉप पे आ जाऊंगा. लेट्स कंप्लीट द सेशन एंड देन आई विल कम टू द लैपटॉप. आई विल लॉग इन अगेन और लैपटॉप से मैं 1-to-1 हम लोग इंटरेक्शन कर लेंगे एंड विल शेयर द चैलेंजेस दैट वी फेस. ठीक है. सो फियर ऑफ नेगेटिव्स बहुत जरूरी रहता है जो बच्चे, एंड दैट इज वेयर, बट एक टॉपर क्या हो, एलिमिनेशन रिस्क को एनालाइज करता है एंड दे विल डू दैट. सेकंड इज सिलेबस. आप अगर एवरेज एस्पिरेंट, आप सिलेबस, सर ये नहीं बचा, वो बचा, ये भी कवर करना है, यू गेट ओवरवेल्म्ड बाय सिलेबस. नाउ आई विल टेल यू, व्हेन आई गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2010, तो मैं जनवरी में दिल्ली आया था बेटा. आई even remember the date, 7th January I left Pune and I came to Delhi and 23rd May को प्रीलिम्स था. रिमेंबर मेरी जीएस की तैयारी जीरो थी. आई वाज जीरो. ऑप्शनल एक तैयार कर लिया था बिकॉज एट माय टाइम वी हैड 2 ऑप्शनल एंड 1 ऑप्शनल यूज्ड टू कम इन प्रीलिम्स. सो पेपर 1 वाज ऑप्शनल एंड पेपर 2 वाज जीएस. जीएस ऐसा ऑन ऑफ थोड़ा बहुत पढ़ा था, न्यूज़पेपर थोड़ा देख लेते थे, बट टेक्निकली सो यू कैन डू द नंबर. आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो और यू हैव 4 to 5 months. बट आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ अ विनर. ठीक है, फाइट करेंगे एंड तक. 23rd को है ना, 20th तक, 21st तक भी अगर मेरा प्रीलिम्स का कट ऑफ निकल जाएगा, आई विल वर्क ऑन दैट. नाउ यू फील डिमोटिवेट राइट अवे, आप आज ही डिमोटिवेट हो जाते हो. सो मेरा फोकस सिलेबस पे था, बट फोकस मोर ऑन द एफिकेसी ऑफ द सिलेबस. टॉपिक तैयार है, कम पढ़ेंगे नहीं, ढंग से पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे. नंबर नहीं आया तो आई डिड नॉट यूज टू फील डिमोटिवेट. हाँ ठीक है, ओके. सो दैट इज द एटीट्यूड यू शुड हैव. तो सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा फोकस करिए सब्जेक्ट्स तैयार हो. You don't have to tick the boxes. Just by ticking the boxes, it will not happen. मान लीजिए आपने बॉक्स से टिक कर लिया, बस रिवीजन अच्छा नहीं है, it will not matter much. आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको एवरेज एस्पिरेंट से टॉपर बनना है. अब वो टॉपर कैसे बनना है, इस पर आपको काम करना होगा, एंड दैट इज वेयर आवर रोल विल कम इनटू प्ले. नाउ 5 पिलर्स फ्रेमवर्क मॉक स्कोर्स को बढ़ाना. पहला, प्रायोरिटी मैपिंग. अगेन आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट. प्रायोरिटी मैपिंग में क्या करेंगे हम लोग, सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे इन द एरियाज which will offer me more marks. For example, in polity, I can go topic wise. Economy, I'll go topic wise. Environment, topic wise. इसमें हम लोग common themes को identify कर लेंगे. The common themes which question जहां से ज्यादा पूछे जाते हैं, और मैं बताऊंगा आपको, because we already know that, you also know that. In polity क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं. I want you to put that message. All the students who are preparing for UPSC, बताओ पॉलिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आते हैं. जस्ट Suhail, write down. Everybody try to write this. पॉलिटी में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, एंड एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लीजिए. पार्लियामेंट से आते हैं, ओके ठीक है. एंड फर्दर फंडामेंटल राइट, ओके, डीपीएसपी, ओके, राइट, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, ओके, प्रेसिडेंट, पार्ट 3, पार्ट 4. यस यस यस, आपको ही पता है. सो यू विल प्रायोरिटाइज, अपने एफर्ट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे. इकोनॉमी में कहां से क्वेश्चन आते हैं, टेल मी, स्टूडेंट्स हैव रेड इकोनॉमिक्स, फटाफट. आई वांट यू एवरीबॉडी, वेयर डू गेट मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम इन इकोनॉमिक्स. नेशनल इनकम से इतने नहीं आते हैं, चलो बैंकिंग से आते हैं. यस, बजट, यस, ओके, बैंकिंग इज वन एरिया. बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, एक्सटर्नल सेक्टर, एग्रीकल्चर. कैपिटल मार्केट से सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल. बीओपी इज वन एरिया.
टेल मी अबाउट ज्योग्राफी, टेल मी ज्योग्राफी से कहां से क्वेश्चन आते हैं, कम ऑन क्विकली, आई वांट टू नो हाउ मच प्रिपेयर यू आर, फटाफट फटाफट, ज्योग्राफी से कहां से आते हैं, टेल मी 5 प्रायोरिटी एरियाज, एवरीबॉडी विल राइट। ज्योग्राफी से क्वेश्चन कहां से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आते हैं, अगर आपको नहीं पता है देन दिस इज द वेयर प्रॉब्लम लाइज, हमारा स्ट्रेटजी तैयार नहीं है। ओके, बायोम्स पे, क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, ओके, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, यस 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 यस। सो व्हेन यू डू दैट, तो हमको ये करना बहुत जरूरी होगा। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कहां से आते हैं, मैक्सिमम गांधीयन फेज से आते हैं, राइट, पोस्ट आफ्टर 1905 से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। सो यू नीड टू नो दैट करंट अफेयर में क्वेश्चन कहां से आते हैं, वेयर, व्हाट आर द फेवरेट एरियाज, टेल मी, कॉमन एरिया जो सब लोग पढ़ के जाते हैं, फेवरेट एरिया जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैपिंग, वेरी कॉमन एरिया, बहुत इजीली आप मैपिंग के 3-4 क्वेश्चन आपको हर साल मिल जाएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेरी इजीली, ओके, गॉट इट, राइट। तो हमारा, मुझे रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स प्योर लॉजिक, आई कैन डू हाई रिटर्न एरियाज, इसका लिस्ट मैं आपको दूंगा, आई ऑलरेडी प्रिपेयरिंग दैट। देन फॉलो 20-30% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से आपको 80% क्वेश्चन मिलते हैं, आइडेंटिफाई, अब ये 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर आर टॉपिक्स व्हिच विल गिव यू मैक्सिमम रिटर्न। तो सिट डाउन, एनालाइज, सी द नंबर्स, तैयारी से पहले हम तैयारी की तैयारी करते हैं, एंड बिलीव मी इट वर्क्स। जैसे पीवाईक्यूज है, यू नो व्हाट माय एनालिसिस इज दैट, आप 30 ईयर का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, आपको 15 to 18 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम से मिल जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पक्का मिल जाएंगे, 15 to 18 क्वेश्चन, दैट इज ह्यूज नंबर्स, बट यू जस्ट हैव टू फॉलो एन अप्रोच जिसमें मैक्सिमम फोकस हमारा लास्ट 10 ईयर्स पे रहेगा, लास्ट 5 ईयर्स पे रहेगा। बट आई कैन गो, यू नो, इवन हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इनफैक्ट हिस्ट्री जब बच्चे पढ़ने आते हैं एंड इफ दे हैव अ डिलेमा, सर हम क्या पढ़े, मैंने कहा एक काम करो, 30 ईयर के पीवाईक्यूज कर लो, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, तुम्हारा 80% सिलेबस कवर हो जाएगा, डू द बैकवर्ड अप्रोच। और ये प्रीलिम्स निकला है ऐसे अप्रोच से, मैं इस साल की बात कर रहा हूं, देयर आर पीपल हु केम सेड नहीं पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री, पढ़ा है लेकिन ऑन ऑफ पढ़ा है, मैंने कहा एक काम करो, लेट्स फॉलो बैकवर्ड अप्रोच, 30 इयर्स पीवाईक्यूज फॉलो कर लो। आप खुद सोचो, 30 ईयर के मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन लगा लिए, तो फिर बचा ही क्या, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस हैव बीन एग्जॉस्टेड, और 10% 20% नहीं भी आ रहा है, हाउ डज इट मैटर, कट ऑफ ही तो निकालना है। डू आई मेक सेंस, डू आई मेक सेंस, you know, write, everybody write in the message, GT लिखिए, GT, everybody write GT, come on फटाफट लिखिए GT, write, everybody write GT, got it, everybody write GT, does it make sense। प्रिपरेशन की तैयारी करनी है, रैंडम पढ़ना नहीं है बेटा, एग्जाम निकालना है, पीएचडी नहीं करना है, 4 महीने में प्रीलिम निकल सकता है, हम तो हमारे पास वी हैव मोर देन 6 मंथ, गॉट इट, राइट, या यू हैव टू इन्वेस्ट इट, आपको राइटफुली इन्वेस्ट करना होगा। तो पहला तो यही है, तैयारी करो, रैंडम मत पढ़ो, ओके। I will provide you some, you know, important topics जहां से maximum questions आते हैं, that is my area. Then revision. Now this is very important. Revision का भी एक chronology है. So revision कहां से होगा? So revision of class notes, ये सबसे जरूरी है अगर आपने बनाए हैं तो, अगर क्लास नोट्स में कहीं कमी है उसको अपडेट कर लीजिए, स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में यू हैव टू रिवाइज बिफोर गोइंग टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपको 5 to 6 टाइम्स रिवाइज करना है, सोर्सेस को लिमिटेड रखिए, तभी 5 to 6 टाइम्स रिवीजन होगा। इफ अ सिंपल क्वेश्चन कम्स फ्रॉम माय नोट्स, आई शुड नॉट मेक अ मिस्टेक। इफ देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनीवेयर, आई शुड बी, माय एक्यूरेसी हैज टू बी 90%, मुझे इतना एक्यूरेसी लेके आना है इन द फैमिलियर एरियाज उस दिन। और यूपीएससी का पेपर उठा के देख लो, every paper you will at least you will find 30-35 क्वेश्चन, ये मिनिमम है, and maximum up to 40 क्वेश्चन जो आपको आते होंगे। But game is not here, इसके बाद के क्वेश्चन, गेम यहां भी है। Now in these questions you have to have accuracy of 90%, उस पे भी हम आएंगे। So here naturally हमको क्या करना, रिविजन का हमारा फॉर्मेट रहेगा, मेमोरी डज नॉट फेड, इट जस्ट नीड सिग्नल्स। रिविजन रूल यहां 3 लिखा है, मैं तो 4-5 जाना चाहता हूं, बट 5 टिल द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो फोकस, आप नया मत पढ़ो, करंट को रिवाइज करो एंड गो एंड गिव द टेस्ट, आपकी एक्यूरेसी बेटर रहेगी। हम लोग सोचते हैं कि फॉर्म हम ये भी पढ़ लेते हैं, आई विल ऐड दिस सोर्स, ये वाला भी मैगजीन कर लेते हैं, एंड यू डोंट फील कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट इज वेयर फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर टेस्ट देते हो, स्कोर नहीं आता है,
तो वो आइडिया रीइंफोर्स हो जाता है दैट नहीं वर्क कर रहा है. बट वंस यू रिवाइज, नाउ बिफोर गोइंग अहेड, एंड आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीवन, और सब लोग इस बात का जवाब देना एंड ट्राई टू कम्युनिकेट विद मी. हाउ मेनी ऑफ यू have revised at least 2 to 3 times before attempting the test? जो लास्ट टेस्ट दिया था, कोई भी टेस्ट दिया था, क्लास टेस्ट दिया, टॉपिक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट दिया, कितने लोगों ने 3 रिवीजन मिनिमम किया बिफोर गोइंग विद द टेस्ट? जस्ट मैसेज मी, राइट मी, कितने लोगों ने 3 रिवीजन किया बिफोर गिविंग द टेस्ट? कोई भी टेस्ट दिया हो रिसेंट में. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिवाइज्ड? एनीबॉडी हु हैज गिवन 3 रिवीजन, मिनिमम 3 रिवीजन? तो बेसिक रूल ही फॉलो नहीं है. I'll tell you when I go and teach a module, इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, तो मैं क्लास से पहले मैं खुद क्वेश्चन सारे देखता हूँ, अपने नोट्स देखता हूँ, देन आई फाइंड अच्छा इस नोट्स में ये गैप है, उसको अपडेट करता हूँ, आई गो एंड रीड, R&D करता हूँ, आई यूज ChatGPT, आई यूज परप्लेक्सिटी, मेरे पास 3-4 के सब्सक्रिप्शन पड़े हुए हैं. तो एग्जैक्ट उसको ये भी पता है मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट बहुत कट टू कट इन्फॉर्मेशन देता है. माई परप्लेक्सिटी AI मुझे सिर्फ गवर्नमेंट सोर्सेज से डेटा देता है, तो वो मेरा काम बचा देता है. आई डोंट हैव टू गो एंड, मैं उसको भी कहता हूँ पिक इट फ्रॉम PIB सोर्सेज, पिक इट फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट. तो वो क्या कर देगा, जो मैं शायद 20 मिनट में करूंगा मुझे 2 मिनट में करके दे देता है. तो इट सॉल्व्स माय एफर्ट. और उसमें सोर्स, एंड आई आल्सो मेंशन द सोर्स आल्सो. परप्लेक्सिटी AI में अच्छी बात क्या है कि वो सोर्स को ही मेंशन करते हैं, यहां से उठाया है, सो एरर का चांस नहीं होता है. ChatGPT में सोर्स वो भी देते हैं बट वहां एरर का चांस रहता है. ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू. तो आपने जितने लोगों ने भी टेस्ट दिया, रिवीजन नहीं किया, तो रिवीजन का 3 रिवीजन रूल होना चाहिए. जैसे मान लो कल टेस्ट है, आज आपको लगता है 2 से 3, लेट्स से यू हैव टेस्ट कल है या 3 डेज के बाद है, तो 3 रिवीजन करने की कोशिश करनी चाहिए. इफ यू कांट डू इट, एटलीस्ट 2 तो करके जाओ. बिलीव मी, इट मेक्स अ डिफरेंस. बाद में हम लोग माइक्रो नोट्स बनाएंगे सब्जेक्ट के, टॉपिक्स के. ओके, कोई जो न्यूज में है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसके माइक्रो नोट्स बनाएंगे, 1 लाइनर्स, ये PYQ में था, ये फैक्ट शीट इसका बनाएंगे, डेटा बनाएंगे. जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसमें बड़ी दिक्कत होती है, डेटा बहुत होता है, आर्ट एंड कल्चर हेवीली लोडेड विद डेटा. तो आई विल राइट इट जहां संभव होगा, नॉट ऑल, सिलेक्टिवली. ओके, 1 सब्जेक्ट 1 डे 1 फुल रिकॉल, ऐसा कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे, विल डू इट लेटर. ठीक है ना. तो बाद में सेकंड फेज में हम लोग करेंगे Jan-Feb में. इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा हूं कि हम लोग लाइव टेस्ट लगाएं, लाइव एनालाइज करें, और लाइव आपसे मैं इंटरेक्ट करूं, और लाइव आप स्कोर बताओ, एंड यू शेयर योर प्रॉब्लम्स. ऐसा भी हम कर सकते हैं, बट नॉट नाउ, मे बी आफ्टर 2-3 months. Then 5 pillar framework to increase mock में अगला है mock test strategy. Now before going to the prelims, हमको 40 full length test, 40 तो upper side है, but इसमें मैं PYQs को भी include कर देता हूं. So you have to 5000 questions हमें लगाने हैं including PYQs. CSAT भी 25 GS and 15 CSAT. 15 को हम 10 भी कर सकते हैं. ठीक है. So you can do 30, यानी 3000 question plus 1500 PYQs. This is the upper side. इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो. Again, I am not questioning those people जिन्होंने 1000 क्वेश्चन लगाए, but that is how not memory works. अगर आप 100 टेस्ट लगाते हो, make sure you are able to revise 6 times, which you cannot do it. हर वीक भी एक टेस्ट लगाओगे. How many weeks we have? Tell me. Do the number. How many weeks you have? Put it in the message. कितने वीक्स हैं हमारे प्रीलिम से पहले? How many weeks we have? So 6 months, right? 6 मंथ है हमारे पास, 7th मंथ में टेस्ट है, तो 6 4 या 24, लगभग 26-27 वीक्स आर देयर. तो आप 20 हर वीक एक टेस्ट भी लगाते हो तो मैक्सिमम 27-28 टेस्ट ही लगा पाओगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट डज नॉट मैटर मोर कि आप ज्यादा लगाते हो, कम अच्छे से लगाना है, दैट इज द की पार्ट. ओके, नाउ सेक्शनल लेवल पे क्या होता है, यू हैव अ स्ट्रेटजी. नाउ लेट्स सी यू आर सॉल्विंग अ टेस्ट पेपर, और अभी तो टू अर्ली है, आप 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हो, तो पहला जो राउंड होना चाहिए, आप श्योर क्वेश्चंस को हिट करो, द इंफॉर्मेशन यू हैव. सेकंड राउंड इज इंटेलिजेंट गेस, पूरा गेम यही खत्म हो जाता है. एंड देन द लास्ट इज एलिमिनेशन राउंड. आप लास्ट के जो स्मार्ट गेस के अलावा नेक्स्ट लेवल पे जाते हो. सो यू कैन आइडली एट द मैक्स यू शुड अटेम्प्ट मोर देन, नॉट मोर देन, आप 75 टू 85 का अटेम्प्ट रखो, ये आइडियल अटेम्प्ट है. 85 से थोड़ा ऊपर जा सकते हो, बट पेपर इजी होगा तब. दिस इज एन आइडियल रेंज ऑफ द अटेम्प्ट, एंड यू हैव टू डिवाइड द एफर्ट. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन माइनस फियर प्लस ओवर थिंकिंग, हमको उतना ही अटेम्प्ट करना है. ठीक है, हमको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बट आई हैव टू गो विद द अप्रोच ऑल्सो कि वो जो स्वीट स्पॉट है 95-100 का, उसको हम टच कर जाए. डू आई मेक सेंस?
बिकॉज नंबर ऑफ बहुत लेस, हमारी एक्यूरेसी 75% होनी चाहिए, रिमेंबर। और 75% एक्यूरेसी के लिए तभी संभव है जब आप मिनिमम 75 क्वेश्चन लगाते हो। तो 75% एक्यूरेसी विद मिनिमम 75 क्वेश्चंस, जब आप 100 का स्कोर टच करोगे, यू कैन डू द मैथ, आप मैथ कर लो। तो हमको 75:75, ये हमारा फॉर्मूला है, 75:75, 75 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट एंड 75% एक्यूरेसी, तो हम 100 पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आपने 75 की जगह 73 किया तो फिर योर नंबर विल आल्सो कम डाउन, सो वेरी इजीली। ठीक है, नाउ दिस इज फॉर फाइनल डे, बट उससे पहले हम लोग सीखेंगे इस बात को। एलिमिनेशन रूल छोड़ देते हैं, बिकॉज आई फील दैट यूपीएससी में एलिमिनेशन अब काम नहीं करता है। दिस समथिंग दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। नाउ द रियल गेम स्टार्ट जब आप टेस्ट दे लेते हो। टेस्ट दिया, यू फील कॉन्फिडेंट, टेस्ट अच्छा हुआ है, मे बी यू डोंट फील कॉन्फिडेंट। नाउ what do you do after every time? How many of you, now people who have given prelims, जिन्होंने प्रीलिम दिया है, एंड यू टेल वेरी ऑनेस्टली, और अगर आपको मैसेज नहीं लिखना मत लिखो, बट यू कैन टेल मी, डिड यू एनालाइज योर पेपर एंड चेक हाउ मच स्कोर यू आर गेटिंग? पहला सवाल। सेकंड इज, डिड यू चेक सेक्शनल वाइज की किस एरिया में क्वेश्चन आपके गलत हुए? डिड यू चेक इवन द नेक्स्ट लेवल की आपकी एक्यूरेसी में सिली मिस्टेक्स कितने थे, रैंडम गेस कितने थे, स्मार्ट गेस कितने थे? एंड आंसर इज 99% पीपल आर नॉट डूइंग इट। 99% पीपल का ये जो पार्ट है, दिस इज द वीकेस्ट पार्ट। आप पोस्ट टेस्ट एनालिसिस नहीं करते हो। आप एरर लॉग बुक बनाओ, मैं आपको एक शीट दूंगा, उसमें आप एरर लॉग कर सकते हो। यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑल्सो एंड राइट आफ्टर एवरी टेस्ट कि भाई इतने एरर हमारे हुए। राइट द एरर का नेचर, राइट द नेचर ऑफ एरर। इज इट कॉन्सेप्ट मिस्टेक, इज इट अ फैक्चुअल मिस्टेक? अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो रीस्टडी करो, सिली मिस्टेक है देन यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग करनी होगी, वहां पर गलत नहीं होना चाहिए। ओवर थिंकिंग हो रहा है, ऑप्शन क्लोज है, दैट विल अगेन इंप्रूव विद रिवीजन। थर्ड इज गेसिंग एरर, एडजस्ट रिस्क प्रोफाइल। आपका रिस्क, ज्यादा रिस्क मत लो, उतना ही रिस्क लो जितना कर पाओ, बट कॉन्सेप्ट मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज अ कॉन्सेप्ट मिस्टेक, दैट मींस यू हैव टू गो बैक टू द बुक एंड रीड अगेन, बिकॉज इन यूपीएससी एवरी ईयर conceptual question will come. Now this is the most common problem as aspirant face करते हैं, और ये आपको पता नहीं है। You don't want to face your fears. अच्छा, tell me, very important, and you will message me. जो सब्जेक्ट वीक लगता है, आप जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, आप उसको छोड़ देते हो? Don't you think? Just tell me whether you do or not. Tell yes. वहां पे मैसेज में लिखो, चैट में लिखो yes or no. जो सब्जेक्ट वीक लगा छोड़ देते हो उसको, जहां आपको लगता है आप स्ट्रांग नहीं हो, लेट्स मूव टू न्यू सब्जेक्ट एंड यू लीव इट। द वर्क इज अनफिनिश्ड, उस काम को फिर शुरू ही नहीं करते हम। होता है कि नहीं होता है? ये कॉमन ह्यूमन है बेटा, सब लोग ऐसे ही होते हैं, वी आर ह्यूमंस, वी ऑल लिव सिमिलरली। यू रिवाइज इट मोर टाइम, ठीक है? सिद्धार्थ कह रहे मैं रिविजन ज्यादा करता हूं। ओके ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। चलो, सो प्रॉब्लम यही है, वी हैव मोर देन 40 स्टूडेंट्स राइट नाउ इन द क्लास एंड ऑल ऑफ देम वांट टू क्लियर प्रीलिम्स। और आप मेरी बातों पे स्टिक करो, मैं आपको प्रीलिम निकलवा दूंगा, बट मेरी यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू सरेंडर एंड आई विल गो विद लॉजिक। कोई रैंडम बातें नहीं करूंगा, मैं हवाबाजी कोई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एलिमिनेशन रूल्स भी नहीं बता रहा हूं, बिकॉज देयर आर नो एक्चुअली रूल्स। कभी काम कर गया ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू अ प्रोसेस दैट विल वर्क। यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट प्रोसेस, कीप योर सोर्सेस सिंपल एंड इट विल डू। ठीक है? आइडेंटिफाई थीम्स, वीकनेसेस अपने टॉपिक्स में। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने I'll tell you my information. So मेरा इकोनॉमिक्स अच्छा था शुरू से, my economics was good, but my economics में भी टॉपिक्स अच्छे थे। I was good in monetary policy, banking, capital market मुझे समझ में नहीं आता था, समझ मतलब बेसिक तो पता था बट बहुत ज्यादा नहीं समझ, तो I left it। और जब छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। Till the time I started teaching, तब तक मैंने उस टॉपिक को तैयार नहीं किया था। And when I started teaching, then I realized that ये मेरा वीक टॉपिक है। तो मेनी अ टाइम्स द टॉपिक या सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो, लेट्स से आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, आपने पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी में आपका एक एरिया वीक है लेट्स से, एंड यू डोंट नो। उसकी वीकनेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, शायद टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, या फिर नोट्स आपने नहीं ढंग से बनाए, या रिवीजन अच्छे से नहीं किया, और या उस टॉपिक में आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, एमसीक्यूज नहीं लगाए। मे बी टेस्ट, अच्छा टेस्ट पेपर्स में क्या होता है, वी ट्रस्ट द टेस्ट पेपर्स, मेनी टाइम्स टेस्ट पेपर में उस टॉपिक पे फोकस नहीं हुआ है, तो टॉपिक रह गया है। Okay, so these are the problems that we face
और एक और एरिया होता है 100% श्योर स्टिल इनकरेक्ट। तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, सिली मिस्टेक, ठीक है, रैंडम गेसेस। अच्छा, गेस भी दो तरह का होता है, एक होता है स्मार्ट गेस, एक होता है रैंडम गेस। स्मार्ट गेस अलाउड, रैंडम गेस नो, इसको नहीं करना है। सो यू हैव टू लर्न द एबिलिटी टू डू दैट, और अगर आप सीरियसली करोगे इट विल वर्क फॉर यू। एक्चुअली आज मेरा वो सेटअप, मैं क्लास नहीं लेता हूं यहां से, मैं घर से ले रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं कि भाई मेरा माइक अभी मुझे लगा चल रहा है, बट आई वांट टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू, बट सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको और बेटर करेंगे। नाउ कॉमन मिस्टेक्स दैट किल स्कोर, पहला सीसैट। नाउ सीसैट को हल्के में नहीं लेना है, वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग अ सीसैट, और सीसैट में बहुत अच्छे से करेंगे। दिस वीक ऑनवर्ड्स यू विल सी द डिफरेंस इन सीसैट आल्सो, ओके। देन नॉट रिवाइजिंग द सॉल्व मॉक्स, आपको लगता है वेस्ट हो गया, कुछ बच्चों से मिला उन्होंने पुराने मॉक्स को फेंक दिया उठा के, डोंट डू दैट, ठीक है। इमोशनल रिएक्शन ड्यूरिंग टेस्ट, लूज कंट्रोल आफ्टर 3-4 टेकिंग क्वेश्चन। आपने 3-4 क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, आपका मोमेंटम डिस्टर्ब हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट ये हुआ है आपके साथ? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू आर अटेम्प्टिंग, 3-4 क्वेश्चन नहीं निकले, ट्रिकी लगे, एंड यू फील डिसओरिएंटेड एंड पेपर वहां से डाउनवर्ड स्लोप स्टार्ट हो गया? टेल मी हाउ मेनी फेल्ट लाइक दैट? डिड यू नॉट फील दैट? डिड यू नॉट फील दैट? होता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है, इट इज ह्यूमन, वी आर ह्यूमन, एवरीबॉडी फेसेस दिस प्रॉब्लम, ठीक है। फेस करते हो, राइट? फिर क्या करते हो? गिव अप कर देते हो, गिव अप कर देते हो वेरी इजीली, ओके। स्टडिंग एवरीथिंग रैंडमली, प्लान नहीं है, नो प्रायोरिटी, नो रिकॉल, नहीं, नो रैंडमनेस, स्ट्रैटेजी, प्रोसेस। ओवर अटेम्प्टिंग बेस्ड ऑन पीयर प्रेशर, अरे यार मैं तो 90 अटेम्प्ट कर लेता हूं, आपका फ्रेंड 90 करता है, आप 65-70 में फंसे हुए हो। अरे भाई तू तो बहुत बढ़िया है, तेरा तो अच्छी है तैयारी। नाउ दैट पर्सन माइट बी फेकिंग, दैट पर्सन माइट बी फेकिंग, बट ठीक है, दैट पीयर प्रेशर इज देयर। तो आप क्या करते हो? ओके, दूसरे का रिस्क, हर इंडिविजुअल का रिस्क कर्व अलग होता है, तो मुझे अपना रिस्क कर्व आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे मैं कभी भी 100 नहीं था, आई वाज ऑलवेज 75, 80, 85, 85 से ऊपर मैं रेयरली जाता था, एंड आई ऑलवेज स्कोर्ड 20% अबव कट ऑफ, कट ऑफ से 20% ऊपर रहता था। और मुझे देख के मालूम हो जाता था कि मैंने लास्ट जो पेपर दिया था 2015 में दिया था, एंड मेरा स्कोर था 123, कट ऑफ था 108.48, ये कट ऑफ था। और मैंने 20 दिन प्रीलिम्स की तैयारी, 20 से 25 दिन प्रीलिम्स की तैयारी की थी, बिकॉज आई वाज अ टीचर। इन 15 आई वाज टीचिंग, फुल टाइम टीचर था, ये एक्स्ट्रा टर्म मिला था। मैंने 20 दिन में ज्योग्राफी पढ़ा, एनवायरमेंट पढ़ा, साइंस टेक पढ़ा, इकोनॉमिक्स पॉलिटी मैं रेगुलर पढ़ाता था, तो मुझे उस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं थी। बट इन ऑल अदर एरियाज आई हैड टू प्रिपेयर। मैंने फिर अपने 2011 की ज्योग्राफी के नोट्स उठाए, बुक उठाई, कुछ नया नहीं किया, वही किया। और करंट अफेयर में नहीं पढ़ पाया, बिकॉज पूरे साल का करंट अफेयर यू कैन नॉट स्टडी इन मैटर ऑफ 2 to 3 वीक्स। बट मैंने फिल्टर कर लिया था करंट अफेयर, ये जरूरी नहीं है। स्टिल वहां पे सिंपल बेसिक करंट अफेयर क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे, जो नॉर्मल एस्पिरेंट जिन्होंने मंथली मैगजीन ढंग से पढ़ा उन्होंने सॉल्व कर लिया। एंड बाद में देखा ऐसे 8-10 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं पता थे, बट स्टिल आई स्कोर्ड 123 आउट ऑफ 200। कोई मिरेकल नहीं है, नॉर्मल है, इट वाज प्रीटी नॉर्मल। मैं आपको स्कोर कार्ड तो नहीं, उस टाइम हम लोग स्कोर कार्ड सेव नहीं करते थे, बट आई कैन शो यू द इंटरव्यू का, मैं आपको डिटेल दिखा दूंगा, इंटरव्यू मैंने दिया था उस साल, ठीक है। अभी आज की तरह तो क्या सब सेव कर लेते हैं फिर उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो हमारा जमाना अलग था। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर गोइंग टू फेस। गॉट इट राइट एवरीबॉडी? राइट, गॉट इट? सब लोग जीटी लिखो, जीटी। हाँ, हमको फिक्स करना है, हमको अपने प्रिपरेशन को फिक्स करना है। आपको अपने मिस्टेक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा, आपके स्टडी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डज नॉट वर्क फॉर यू। आपको अपने कॉन्फिडेंस को रीबूट करना है, प्रिपरेशन को रीबूट करना है। और रीबूट कहां से होता है? यहां से होता है। इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट। अगर तुमने सोच लिया प्रीलिम्स निकालना है तो निकलेगा ही। इफ यू थिंक कि प्रीलिम्स निकलना है तो आप सवाल ही करो, सर बताओ करना क्या है, निकलेगा मेरा। ये चेकलिस्ट बना दी, ये करना ही है। एंड नो ओवर थिंकिंग, नहीं होगा तो क्या होगा? अरे नहीं होगा तो क्या होगा? जब नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, एंड इफ यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। आई मीन इट इज प्योर कॉमन सेंस, राइट? ठीक है, तो हमारा टाइमलाइन कुछ इस तरह का रहेगा।
You can look at the timeline that we have. The first is नवंबर दिसंबर में हम कोर सब्जेक्ट फोकस करेंगे. कोर मीन स्टैटिक. करंट अफेयर अगर आपका तैयार नहीं, घबराइए नहीं, फोकस ऑन स्टैटिक एरियाज. ओके, 2 सब्जेक्ट अ डे या 1 सब्जेक्ट अ डे, 2 मॉक्स, 1 मॉक, मैं 2 नहीं 1 मॉक अ वीक बोल सकता हूँ. ठीक है, अगर आप देखोगे हमारा शेड्यूल, मैं अभी प्रयास के शेड्यूल से भी लिंक करूंगा. ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन ऑफ योर स्टैटिक एरियाज, नोट्स, एंड विल गिव टेस्ट और पीवाईक्यूज भी करेंगे. फिर यहां पर हम बेसिक रिवीजन के बाद विल गो टू द, यहां पे हम फुल टेस्ट पे जाएंगे. सेक्शनल टेस्ट लिखेंगे जैन फेब में 100 क्वेश्चन के, यहां पे हम 50 क्वेश्चन के क्वेश्चन लिखेंगे. एंड देन दिस विल हैव ट्रेंड एनालिसिस करोगे, अपना स्वॉट एनालिसिस करोगे, रिस्क मैपिंग करते रहोगे. रिस्क मैपिंग आप पूरे टाइम करते रहोगे, मैं कितने अटेम्प्ट कर पा रहा हूं. ट्राई टू इंक्रीज द योर रिस्क एपेटाइट. देन मार्च अप्रैल में फुल लेंथ टेस्ट देंगे और यहां पे हम साइमुलेट करेंगे. अगेन ज्यादा नहीं देना है, 1 टेस्ट मैक्सिमम 2 टेस्ट अ वीक, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है. बिकॉज एवरी टेस्ट, नॉट 2 आवर के टेस्ट के साथ आपका 5 या आवर का एनालिसिस रहना चाहिए. अगर आप 10 टेस्ट दोगे तो आपका 50 घंटे का एनालिसिस होगा ना. इमेजिन एवरी टेस्ट रिक्वायर्स एनालिसिस ऑफ 5 आवर इफ इट इज 100 क्वेश्चन पेपर, और एटलीस्ट 2.5 आवर इफ इट इज 50 क्वेश्चन पेपर. और जो क्लास टेस्ट होते हैं वो इजी होते हैं. यूपीएससी के जो टेस्ट होंगे, मॉक्स के टेस्ट होंगे, उनका लेवल ऊपर होगा. ओके, सो इन मार्च अप्रैल विल फोकस ऑन द दीज एरियाज. हमको एग्जाम टेम्परमेंट को बिल्ड करना है. एंड लास्ट का जो 20 डेज होगा, इट इज अबाउट रिकॉल, रिविजन, कॉन्फिडेंस. अपनी एरर बुक देखेंगे, 1-2 मॉक्स लगाएंगे, है ना, एंड विल ट्राई टू पीक द परफॉर्मेंस. नाउ आई वांट यू टू आस्क, ये क्या शेड्यूल आपको, डज इट मेक सेंस? अपना कॉमन सेंस लॉजिक यूज करके बताओ, डज इट मेक सेंस और नॉट? डज इट मेक, यहां पे हम करंट अफेयर को भी कंप्लीट करेंगे. दिस वन मोर थिंग विल डू, करंट अफेयर. डज इट मेक सेंस? सुयस, तनिषा, राजू, विदिशा, डज इट मेक सेंस? नेहा, संजना, पवन, निखिल, क्षितिज, हितेश, देवांश. ठीक है, तो चीजों को सिंपल रखो, चीजों को सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेट मत करो. नॉइज से अपने आप को दूर करो. कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है, मत मानो. आई लिसन टू सर, आई विल गो विद द अप्रोच ऑफ सर. स्कोर बढ़ेगा तो मेरा अप्रोच जो मैं कह रहा हूं वैलिडेट हो जाएगा. इफ योर स्कोर विल इंप्रूव, द स्कोर विल. अभी आज ही एक स्टूडेंट मेंटरशिप की थी, शी रोट अ टेस्ट एंड मैंने, उसने भी 1-2 अटेम्प्ट दिए थे, प्रीलिम नहीं निकला था. तो मैंने कहा कि बेटा ये करो, ये एनसीईआरटी का लिस्ट, क्लास नोट्स तुमने पढ़ा, ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, इन चैप्टर्स को देख लो, यू हैव नॉट कवर्ड देम. यस सर. बट अंदर से तो था कि सर ये तो एनसीईआरटी से क्या मिलेगा, मैंने करके आओ. शी स्टडीड इट प्रॉपर्ली, केम बैक, और फिर शी सेड दैट वेल आई अटेम्प्टिंग टेस्ट, और मैं आज ही बात बता रहा हूँ, शी सेड दैट सर आई कैन सी देयर वर गैप्स इन माय नोट्स, मेरे नोट्स में गैप्स थे. मैं टेस्ट देते टाइम मुझे फील हो रहा था कि मुझे पता होना चाहिए, एंड सम क्वेश्चन आई मिस जस्ट बिकॉज रिवीजन वाज लैकिंग. तो इट वाज प्योर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चा कह रहा है. तो यू विल आल्सो से द सेम थिंग एंड यू विल आइडेंटिफाई दैट गैप एरियाज. और मेरी स्टूडेंट है नादिया, नादिया अब्दुल राशिद, जो इस बार सेलेक्ट हुई है, फाउंडेशन की स्टूडेंट है, 2 बार सेलेक्ट हुई है. तो व्हेन शी केम, अभी 2 महीने पहले आई थी, तो आई आस्क्ड कि तुम्हारा जो सोर्स था, प्राइमरी सोर्स, तो सेट सब प्राइमरी सोर्स तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से रखा था, एंड 1 न्यूज़पेपर का से वैलिडेशन करती थी, एंड मॉक्स जो हम देते थे उसी का मैंने क्वेश्चन लगाए, एंड आई गेव वेरी लिमिटेड मॉक्स. दिस वाज द थिंग शी टोल्ड मी. और उसने 2 बार प्रीलिम निकाला था, 2 बार नहीं भी निकला था, बट शी क्रैक्ड प्रीलिम्स ट्वाइस एंड बोथ द अटेम्प्ट शी गॉट सिलेक्टेड. तो होता क्या है ना कि आप प्रिपरेशन को कॉम्प्लिकेट कर देते हो. इट इज अबाउट, अभी क्या है, जब ज्यादा पढ़ते हो, सो देयर इज अ इट्स अ ओशन विद रेड ओशन. रेड ओशन में क्या है, सब लोग आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं. आपको यू हैव टू गो इन द ब्लू ओशन, जहां एकदम साफ है. तो वो कंपटीशन जो ऊपर है ना, वहां नहीं है. कंपटीशन यहां धरातल पे ज्यादा है, where everybody is studying more, they are solving more mocks, there is FOMO, peer pressure. तुमने ज्यादा अटेम्प्ट किया, मैंने कम अटेम्प्ट किया. बट जो स्मार्ट बच्चा है वो कह रहा है यार ठीक है, मुझे प्रीलिम निकालना है, हाउ डू आई रीच टू द मैजिकल नंबर ऑफ 90? मैं ये जो मैजिकल नंबर है यहां तक कैसे पहुंचूं? 85 मेरा पहला मैजिकल नंबर होगा, देन आई विल रीच इट टू 95 एंड देन आई विल क्रॉस द 100. अभी मान लो 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो वो ये 60-70 का मैजिकल नंबर कैसे आएगा? हाउ डू आई प्रोग्रेस फ्रॉम 1 मैजिकल नंबर टू 2nd मैजिकल नंबर टू 3rd मैजिकल नंबर? और अच्छी बात क्या है, दैट यूपीएससी में सारे पेपर्स अवेलेबल है. सो इट इज प्योर लॉजिक दैट मेक्स सेंस.
तो एज एस्पिरेंट आपको 2-3 दिन काम करने होंगे। एक तो चीजों को सिंपल रखो, एंड आफ्टर एवरी टेस्ट मेंटेन एरर लॉग बुक, और मैं आपको एक शीट दूंगा, एंड एवरी अटेम्प्ट वन मॉक एवरी संडे, एनालाइज बाय मंडे इवनिंग। ये जरूरी है, हर संडे एक टेस्ट दो, संडे दो, सैटरडे दो, व्हाटएवर, बट नेक्स्ट डे बाय इवनिंग एनालिसिस शुड बी ओवर। ठीक है, फिर स्कोर ट्रैकर बनाओ एवरी वीक इन द, और हम लोग नहीं होगा तो हम शीट बना के डिस्कस भी कर सकते हैं। मेनी टाइम्स यू डोंट वांट टू शेयर इट, ठीक है, बट आई विल डू समथिंग ऑन दैट। ठीक है, वन मॉक प्रेशर सिमुलेशन एवरी 15 डेज, अब ये हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज व्हाट हमारा एक एक्शन प्लान होगा। ठीक है, नाउ आई वांट टू शेयर द प्रयास का शेड्यूल। ना ये प्रयास का हमारा मेंटरशिप का शेड्यूल है, एंड इफ यू लुक एट द शेड्यूल, तो इसमें इनर सर्कल सेशन जो आज का हो रहा है वो इसी पार्ट का है। ना फर्स्ट वी हैव 42 हाई क्वालिटी टेस्ट, देन 1-to-1 मेंटरशिप में हम लोग मिलते ही हैं, अवेलेबल है। इनर सर्कल सेशन में हम क्या करेंगे, और इसमें आज मैं आया हूं, विल ऑल्सो संजीव सर भी आएंगे जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इनकी टीम बना रही है। ठीक है, देन कंटिन्यूअस ट्रैकिंग ऑफ परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी एंड इंप्रूवमेंट, ये हमारा सेकंड लेवल पे होगा। और स्ट्रेटेजिकली we have divided the entire preparation to 4 phases. First phase is foundation and orientation. आप यहाँ पे एक्यूरेसी बिल्ड करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आओ, मत घबराओ, डोंट, ये मत सोचो कि सिलेबस कब खत्म करना है दिसंबर तक। फोकस ऑन कवरिंग इट प्रॉपरली। हो सकता है दिसंबर की जगह जनवरी पे जाए। एक टेस्ट का शेड्यूल हमने दिया है, नाउ आई विल ट्राई टू मैप माय शेड्यूल विद दैट, बट आई हैव टू गो विद माय अप्रोच। नाउ इन दिस फर्स्ट फेज वी विल टारगेट 14 टेस्ट, 2 मंथ में 14 टेस्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड हिस्ट्री। ठीक है, करंट अफेयर अभी आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ हम लोग मेंटरशिप सेशन में जो रहेगा, ये इनर सर्कल भी एक मेंटरशिप सेशन की तरह ही है, बट इट इज मोर ऑनलाइन। देन हम लोग को अपना प्रीलिम्स का स्कोर ट्रैकर बनाना है, हमको माइंडसेट पे काम करना है। हाउ डू आई स्कोर बेटर, हाउ डू आई इंप्रूव माई स्कोर, व्हाट आई शुड डू मिनिमम, अपर लिमिट नहीं बट लोअर लिमिट क्या कर सकते हैं। सेकंड फेज प्रैक्टिस एंड प्रिसिजन, ये जैन फेब में होगा। यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और यहाँ पे हर वीक जो सेशन करेंगे विल फोकस ऑन दैट। द थर्ड इज फेज 3 इज मार्च अप्रैल। नाउ मार्च अप्रैल इज लाइक अ फाइनल एग्जाम। फेब एंड तक मेरे सारे सिलेबस, प्रीलिम्स का, मेंस का एटलीस्ट 1 और 2 आइटरेशन हो जाना चाहिए, इफ यू रियली सीरियस अबाउट इट। सो दैट मार्च अप्रैल में हम लोग क्या करेंगे, सिमुलेशन करेंगे, ट्रेन लाइक अ फाइनल एग्जाम, एटलीस्ट 1-2 रिवीजन हो जाए, और यहां पे हम फुल लेंथ टेस्ट देंगे, जीएस सैट, एंड वी विल फोकस ऑन 1-to-1 मेंटरशिप। सो दिस इज व्हाट द एंटायर फोकस वुड बी, और यहां पर हम इनर सर्कल सेशन हर वीक करते रहेंगे। और अकॉर्डिंगली इनर सर्कल सेशन में वन मोर थिंग आई वांट यू टू डू, दैट आप लोग वीकली फीडबैक भरोगे। वीकली फीडबैक सिस्टम आई गॉट स्टार्टेड, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, एंड यू विल फिल दैट, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग सेशन की थीम तय करूंगा। यानी आज का जो थीम था, इट वाज बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आई गॉट। कई स्टूडेंट्स ने कहा सर स्कोर बढ़ नहीं रहा है या आ नहीं रहा है, एंड देन ऑफ कोर्स द फाइनल जो 20 डेज का टाइम होगा, हम रिवाइज करेंगे, एंड विल फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, बर्नआउट नहीं करना है, पैनिक मिस्टेक्स नहीं करना है, और यहाँ पे मैक्सिमम 2 फुल टेस्ट देंगे, या 1 फुल टेस्ट देंगे, 1 अप्रैल एंड में देंगे। फुल टेस्ट मींस संडे को इन द यूपीएससी सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, और फिर रिवीजन स्ट्रेटजी पे विल कंपोज आवरसेल्फ, और ये हमारा फोकस रहेगा। मेंटरशिप में भी फोकस रहेगा, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। सो ट्रैकिंग एनालिटिक्स में आपको मैं शीट शेयर करूंगा, और हमारा फोकस पर्सनलाइज मेंटरशिप पे रहेगा, टेस्ट पे रहेगा, डेटा ड्रिवन फीडबैक, लॉजिक, कॉमन सेंस, ओके, माइंडसेट कोचिंग। मेरा फोकस माइंडसेट पे ज्यादा है आपके। योर कॉन्फिडेंस विल डिसाइड द आउटकम। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इफ यू फील दैट अरे नहीं हो पाएगा, या इफ यू मेक इट लाइक अ बिग गेम जो मैं जीत नहीं सकता हूं, बिलीव मी इट विल नॉट हैपन। ओके, एंड हमारे इस पूरे टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप प्रोग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे है, इट इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी नेचुरली नहीं आती है, नाउ वी विल फोर्स टू टेक अकाउंटेबिलिटी। मैं चाहता हूं हर स्टूडेंट को हम एक सिस्टम बनाए जिसको हम ट्रैक कर पाए। आपने टेस्ट दिया, नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, दिया तो नंबर कितना आया, रिवीजन कितना हुआ, ऑल दैट थिंग हैज टू बी आइडेंटिफाइड। ओके, सो दैट इज व्हाट द अप्रोच वुड बी। ओके, डू आई मेक सेंस? नाउ प्रयास का फुल फॉर्म देखो क्या है, दिस द फुल फॉर्म ऑफ प्रयास। मैं अपना लैपटॉप ओपन कर रहा हूं, उसमें मैं कैमरा लगा रहा हूं, एंड आई विल लॉग इन फ्रॉम देयर ऑल्सो, आई लॉग इन फ्रॉम देयर ऑल्सो, सो दैट हम इंटरैक्ट कर पाए। I want to speak to you all, okay, because you've come in the session.
नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चंस को लिखो चैट में.